starting with myself. हेलो लवली पीपल, मुझे पता है आप लोग इस चैनल का वॉइस ओवर आर्टिस्ट से मिलने के लिए बहुत ज्यादा बेताब होंगे. सो दिस इज मी. नो, आई एम नॉट दैट यंग. आई एम अ ग्रोन अप child. Not a child, a young woman, a charming young woman. Okay. Starting with myself, I am a student of CSPU, basically dealing with the environmental sciences. तो मेरी videos जो देखते हैं regularly इनको पता होगा. I am interested in environment, in plants, basically the channels, as the channel shares plants planted in Pakistan. So I'm sure she's College of Arts and Environmental Sciences related with plants and environments, and I love plants. तो उसी से रिलेटेड चैनल है, उसी से रिलेटेड सारा कुछ होता है इस पे. और फिर दूसरी बात, जो इस चैनल में वीडियोस देखने वाले कोई और भी पता होगी कि मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग एडिटिंग कुछ भी अच्छा नहीं, बिकॉज आई हेट इट. आई रियली वेरी मच हेट वीडियो रिकॉर्डिंग एंड मेकिंग. तो वो उसकी कमी अभी भी देखने को मिलती है, आइंदा भी देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसे ऐसे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी. So as we were talking about my interest, so my interest starting in gardening like 6 years back, and I started my gardening with this gigantic pot. Not that gigantic, I'm just over dramatic. So it's the pot that I bought first, and now I have converted it into 22 other aloe vera plants. That I am very happy for my this like progress and journey. So yes, let's move towards channel's intro. So I have three basic interests, as the name shows. Again, plants, planet, and Pakistan. So plants are very important and a crucial factor of environment, and we have to look towards our planet. So my there are various videos on my channel that care about planet, और planet में जो हमारे पास अहम चीज़ जो हमारे planet care में आ जाती है, वो तो सबसे पहले ये है कि जी हम पोल्यूशन नहीं क्रिएट करें. उसके अलावा जो हम इसकी केयर के लिए कर सकते हैं वो ये है कि हम मैंग्रोव्स और सी ग्रासेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हम इनकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए. तो उसमें मेरे पास बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान. तो पाकिस्तान इज लव, एंड एवरी पेट्रियट लव्स पाकिस्तान, तो loves his country whatsoever. खैर, तो पाकिस्तान इज इम्पोर्टेंट. तो मेरे पास ये 3 बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको लेकर मैंने अपने चैनल को स्टार्ट किया था और किया है, और इनको लेकर चल रही है. एंड आई स्टार्टेड इट बैक 10 months ago. So this journey has been like quite tough and long, but it's going, and we have to keep going with it. Let's take a look how I started my journey of plants and how it's going and what I like. So we talk about my interest of plants. तो जो मेरे इंटरेस्टिंग प्लांट्स थे वो थे हार्डी प्लांट्स. फॉर एवर दे वर लाइक मोस्टली मेरे पास स्नेक और एलोवेरा प्लांट. मैंने हमेशा इनको ही फोकस दी है, बिकॉज दे आर हार्डी प्लांट्स, दे आर इजी टू केयर. तो मैं ज़्यादातर इन्हीं पर फोकस करती थी हमेशा खरीदने में, उनको ग्रो करने में. खैर एलोवेरा तो मैंने ज़्यादा नहीं खरीदा. हाँ, स्नेक प्लांट मैंने बहुत नहीं, थोड़ा सा ये मैंने ख़रीदा नहीं है, इसको ज़्यादा अपनी तरफ से ही ट्रांसप्लांट कर करके ग्रो करवाया है. इनकी ट्रांसप्लांट प्रोपगेशन और बहुत कुछ कर करके मैंने इनको ज़्यादा किया है 1-2 गमलों से ही, और अब इनको क्यारियों में लगाया हुआ है. क्यारियाँ मैंने बहुत गंदी रखी हुई हैं. खैर, A tip: always start your gardening journey with hardy plants. They are easy to look after. but literally first time in the history I have bought a not bought a, but it was a gifted plant, a rose plant. And that's the only forever green flowering plant in my garden. So like it's a good thing. But now I have other flowering plants, but they are seasonal. They are seasonal plants. So seasonal plants तो मैं कभी कभार ले ही लेती थी, but mostly they were hardy plants. Let's discuss overall all varieties and everything. Also the background check. We go back to 6 years when I started gardening. I had only this plant, this not gigantic, I'm just over dramatic plant of aloe vera. Then I converted it into these much aloe veras. Like I have now 22 plants, and I have gifted some of them to my relatives and other people, or some of them to my sisters. So they have beautiful hairs, and they still don't have beautiful hairs. तो और मैंने खुद भी यूज़ किया, मैंने इसको अपनी स्किन पे बहुत यूज़ किया है, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लिटरली स्किन तो बल्कि और ख़राब ही हो जाती है. तो मेरा ख्याल है एलोवेरा को यूज़ करने के बजाय इसको सिर्फ घर की ब्यूटी के लिए ही रखना चाहिए, कि घर में इससे हम पौधे बढ़ाते रहें. और जो 22 प्लांट्स हो गए हैं, सम ऑफ देम आर लार्ज एंड सम ऑफ देम आर स्मॉल, तो बट दे लुक Good, don't they? So after aloe vera, I bought snake plant, and I started this with
पोर्ट जो कि मेरे पास नहीं है, वो पता नहीं कहाँ चला गया। नहीं, वो टूट गया था। आई एम जस्ट वेरी पुअर पर्सन। और जब आप गार्डनिंग स्टार्ट करते हो तो ऐसे हाथ होते रहते हैं। खैर, उस एक पॉट के बाद शायद मैंने एक और खरीदा था, और उस एक और मतलब वो सिर्फ पॉट टूटा था, ये नहीं कि वो प्लांट सारा खत्म हो गया था, वो सिर्फ पॉट टूटा था। और उसके बाद मैंने इसको लाइक आई हैव 5 pots, 1 in a carrot and several others in kiari. So like I have many other snake plants now, and the snake plant is very good for the environment as well, because it clears harmful chemicals and harmful oxides from the environment. तो इनके आप हालत देख के आपको पता चलता ही होगा कि इन पे बहुत प्रेशर है काम करने का, और इन्वायरमेंट में से हार्मफुल सब्सटेंसेस रिमूव करने का। तो ये आपके पास इंडोर जी। और उसके बाद जो मैंने प्लांट फॉर एवरग्रीन प्लांट खरीदा वो था स्पाइडर प्लांट। आफ्टर स्नेक प्लांट हैविंग स्पाइडर प्लांट, मुझे लग रहा था मैं कोई गार्डनिंग नहीं कर रही हूँ, मैं प्लांट्स का जू खोल रही हूँ। खैर, इसका फ्लावर बहुत 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 प्यारा होता है, और इसके पास मेरे पास 2 ही हैं, क्योंकि तकरीबन लाइक 2 years बैक मेरे पास बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए थे प्लांट। मेरे पास पहले 2 थे, फिर मैंने उससे काफ़ी ज़्यादा कर लिए थे, बट ड्यू टू सम मिसहैप इन मूनसून दे गॉट डिस्ट्रॉयड, और मेरे पास सिर्फ एक वो छोटा सा चुन्ना सा वो रह गया था। तो उससे अब मैंने इसको 2 में कन्वर्ट किया, एंड आई होप इट विल सर्वाइव गुड। अब इस तरह कोई मिसहैप नहीं होगा इंशाल्लाह। और उसके बाद जो मैंने प्लांट लिया वो था ये ब्यूटीफुल, नॉट दैट ब्यूटीफुल, कैक्टस। तो अब इसको मैंने ट्रांसप्लांट करके इसके बर्ड्स निकाल के इसके साथ निकलते हैं साइड में, और उनको निकाल के मैंने अलग गमलों में ट्रांसफर कर दिया ताकि और बड़े हो जाएं। यार, मैंने जो नोटिस किया वो ये कि बजाते खुद काफ़ी बड़ा नहीं हुआ, बट इसका फ्लावर, ओ माय गॉड, इट्स सच ए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर। लाइक ओ माय गॉड, इट्स जस्ट वाओ। किसी चीज़ को जब आप देख के वाकई कहते हैं सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ, तो वो ये ना इसका फ्लावर है। लिटरली इट्स सच ए ब्यूटीफुल फ्लावर। Let's take a look at its beautiful flower. जो एक और प्लांट मंगवाया था कैक्टस ही, वो ये था bunny ear cactus. It's such a cute and beautiful cactus. Doesn't it look like bunny ears? So that is why it's named bunny ear cactus. तो इसके भी ये एक और ये ट्रांसप्लांट हुआ हुआ, इसके अलावा भी मैंने किया था, और एक इसका बेचारा बड टूट के गिरा, लेकिन इसके कांटे अल्लाह इंतहाई इंतहाई जलील होते हैं। तो जी, फिर इसकी वजह से अभी तक मैंने इसको यहाँ के ट्रांसप्लांट नहीं किया। इसके 2 और पॉट्स से जो मेरे से शिफ्टिंग के वक्त टूट गए थे, तो खैर है। अच्छा जी, अब उसके बाद की मुझे गिनती भूल गई है कि उसके बाद मैंने कौन सा अपने गार्डन में इजाफा किया था। तो हम लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस एलिफेंट ईयर प्लांट। सो इफ वी काउंट, आई हैव स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट एंड बनी ईयर कैक्टस, एंड देन आई हैव एलिफेंट ईयर प्लांट। सो अगर आपको भी वही लगता है कि जी मैं एनिमल जू खोल रही हूँ, तो नहीं, सॉरी, प्लांट जू खोल रही हूँ, तो बिल्कुल ठीक लगता है। खैर, ये मैंने बाहर से कहीं से उतारा था और इसको यहाँ ला के लगा दिए थे। इस पर मैंने बिल्कुल पैसे लगाए थे। उसके बाद जी मेरे पास मोतिया है। सो द मोतिया आई हैव, इट हैज नेवर ब्लूम्ड। मेरे पास ये 3 मोतिया क्या मतलब है, 1 2 एंड 3। लेकिन अगर पोर्ट्स के हवाले से देखा जाए तो सिर्फ 2 हैं, और दूसरा भी बेचारा पूरा नहीं है, 1.5 समझ लो, उसमें मैंने साथ में लगाया हुआ है न्यासबो। और ये न्यासबो का एक और है मेरे पास। अच्छा, असल में ना मोती मैंने 3 मंगवाए थे, तो वो मैंने 2 को इकट्ठा कर दिया और एक को न्यासबो के साथ कर दिया बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ पोर्ट्स, ठीक है। और ये मेरे पास एक और न्यासबो है। ये बहुत ही अच्छे पौधे होते हैं, इनसे आपके पास बीज नहीं आती और मच्छर नहीं आते और ये वो नहीं आते, और ये सब कुछ झूठ है, क्योंकि मक्खियाँ तो भाई आती हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है मक्खियों का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। इट हैज सच अ ब्यूटीफुल लाइक ब्लूम, और वट एवर यू से, लाइक they're good plant, they smell not that bad, they are good oriented plants। जी, उसके बाद मेरे पास फालसा है। इस फालसे का तो सबको पता होगा कि मेरे पास फालसा है, मैं इसके शॉर्ट्स वगैरह अक्सर डालती रहती हूँ, और ये खराब हो रहा है, इसका एक पत्ता भी टूट गया, अल्लाह गारत करे। खैर, इसका गमला भी काफ़ी बुरी हालत में है, इस ऊपर से भी लाइक नॉट बुरी हालत, ये सारा ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि प्लांट के लिए ज़रूरी होता है। खैर, ये मैंने लाइक ये 6 महीने पहले शायद निकला था, और इसकी भी सीडलिंग्स मैंने बहुत ख़राब की थी एक बड़े गमले में ट्रांसफ़र करने से पहले, और ये 2 वाहिद थी जो हो गई थी, और अब ये भी ख़राब हो रही है, आई थिंक ड्यू टू सीज़न और फ्रॉस्ट। तो अब मैं इसकी केयर करना शुरू करूँगी कि इसको फ्रॉस्ट ना हो।
तो लाइक इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड प्लांट. मैंने और बहुत से प्लांट्स लाइक फ्रूटिंग प्लांट्स ग्रो करने की कोशिश की थी, बट दे डिडंट ग्रू वेल. तो लाइक इट्स सो सैड फॉर मी. तो खैर उसके बाद ये फल से जब ग्रो हुआ तो लाइक आई लव्ड इट. सो मैंने मर जाना और इसकी केयर किसी भी तरीके से करनी है, लाजमी करनी है. इसको मैंने सर्वाइव करवाना ही करवाना है. एंड देन आई हैव क्राउन ऑफ थॉर्न्स. ये मेरी बहन का फेवरेट प्लांट है. ये सिर्फ एक है, मैंने एक ही खरीदा था, सैड लाइफ. लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसके खरीद कर लाऊं, और खरीद कर नहीं लाऊं, पैसे नहीं जाया करते, बुरी बात होती है, वैसी गुर्बत बहुत चल रही है. लेकर आऊंगी मैं, क्या कहते हैं, कटिंग्स. मेरे डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो मैं वहाँ से कटिंग्स लेकर आऊंगी और लगाऊंगी. कहीं ना कहीं इंशाल्लाह लग ही जाएंगे इंशाल्लाह. Then I have this so elegant, so beautiful and so good smelling चंबेली का प्लांट. ये काफ़ी फैला भी हुआ है और लाइक इट स्मेल्स सो गुड. लेकिन ये भी सिर्फ एक है और इसकी खुशबू बहुत प्यारी है, लेकिन बहुत हल्की सी है. तो अब मैं कोशिश करूँगी इसके और भी प्लांट्स लेकर आऊँ, ताकि जब ये हो तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आए. Then I have this portion of seasonal plants. इनमें मोस्टली सीजनल्स ही हैं, जिनमें से गेंदा है, सूरजमुखी है, जो कि अभी ब्लूम नहीं किए हैं और उनमें से कुछ ब्लूम करेंगे. बट आई हैव 3 जो है बीच में, वो कुछ और हैं. ये मैंने पता नहीं कहाँ से लिया था, ये भी लिया था, इसका मुझे आज तक नाम भी नहीं पता, मज़े की बात है. फिर उसके बाद ये मेरे पास एक सिट्रस फ्रूट की सीडलिंग है और वहाँ पे मेरे पास सदाबहार की थोड़ी सी वो है, ये पता नहीं ठीक ही है मतलब. और ये ठीक हो भी जाएगा इंशाल्लाह, बड़ा भी हो जाएगा, जैसे जैसे इसका सीज़न आएगा ये भी ठीक हो जाएगा. And it is doing very well, like very well. Then I have this plant. This is like literally वाला gigantic plant. तो इस बेचारे प्लांट ने बहुत से हादसात अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त किए हैं. इसने जो जो हादसात बर्दाश्त किए उनकी लिस्ट बनाना शुरू करूँ मैं तो ख़त्म हो जाए शायद. ओह माय गॉड, इट्स सो सैड. अच्छा, तो सैडनेस इसमें सबसे ज़्यादा ये है कि ये जब आया ही था तो इसका गमला टूट गया. वेरी सैड. अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इसको एक क्यारी में लगाया. क्यारी में से बेचारा पूरा का पूरा पौधा ही टूट गया और वो मैंने ऊपर लाके लगा दी, ऊपर वाला पौधा, और नीचे वाली स्टेम मैंने वहीं लगा रहने. और उसके बाद इसने हादसाती तौर पर अपने आप को ग्रो किया और ये इतना बड़ा ग्रो हो गया. फिर जब ये संभला था, इतना बड़ा सारा ग्रो हो गया था, तो फिर मैं उसको बाहर क्यारी से निकाल के अंदर गमले में लगा ली. अब ये गमले में लगाने के बाद ये अभी तक ना संभला नहीं है, सही नहीं हुआ. मतलब इसके ऊपर वाले लीव्स देखे जाएं तो ठीक है, नहीं नीचे वाले हैं थोड़े बैठे बैठे से हैं, तो वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह. हाँ, मैं गुलाब का पहले ही बता चुकी हूँ, ये मेरे पास गुलाब भी है और ये बड़ा प्यारा है. इसका बल्ब बहुत अच्छा है, तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने इसके बल्ब की हिफाजत करते हुए इसको बता दिया. जब से ये आया है ना, तब से ये बेचारा ऐसे ही है, ठीक नहीं. इसमें थोड़े से रेड पार्ट होना शुरू हुआ, पहले नहीं था. वाओ, इट्स सच अ न्यू न्यूज़ फॉर मी टू. और ये इतना प्यारा खिला हुआ है, इतना प्यारा खिला हुआ है. जनरली आई डोंट लाइक गुलाब्स एंड अदर फ्लावर्स, बट लाइक दिस इज वेरी ब्यूटीफुल. शायद अपने घर का इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, वरना आई डोंट लाइक गुलाब एंड इट्स स्मेल लाइक लिटरली शादियों वाला कॉन्सेप्ट आता है. सो आई जस्ट हेट इट काइंड ऑफ, बट आई एम लविंग इट. उसके बाद जो है जी मेरे पास रोज़मेरी है. रोज़मेरी का भी वही हाल है जो एलोवेरा का है. खैर ये मैंने इतने ज़्यादा मंगवाए नहीं, 2 मंगवाए थे और अभी भी 2 ही हैं, और इनको भी आए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, थोड़ा सा पहले ही आए थे. तो वो क्या कहते हैं, इनको मैंने ठीक करने की कोशिश नहीं की, बस इसको ट्रांसप्लांट किया. हाँ, ये अभी इनका सीज़न नहीं है. दे नीड 6 आवर्स ऑफ फुल सनलाइट टू ग्रो वेल. लेकिन क्योंकि अभी इसको सर्दियाँ हैं, मौसम भी सीज़न भी नहीं है, तो ये अभी ग्रो नहीं करेंगे. इंशाल्लाह फरवरी मार्च में जाके ग्रो करना शुरू करेंगे, तो फिर इनकी अपडेट दूंगी मैं आपको. और ये ऐसे ही जा रहे हैं. दे आर गुड फॉर स्किन एंड हेयर्स एज दे से. लेकिन मेरा ख्याल है कि लाइक इट्स जस्ट ट्रेंडिंग, तो इसीलिए हर कोई यूज़ करता है और हर किसी ने अपने माइंड में बनाया होता है, तो वो उस वजह से है बस. उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल ये लिटरली कोई काम करता भी है. तो इसको भी एलोवेरा की तरह बजाय कि आप इसको यूज़ करें, आप इसको घर की खूबसूरती के लिए लगा रहने दें तो बेहतर है. देन आई हैव रात की रानी का प्लांट. आई हैव 3 ऑफ देम. तो रात की रानी कहते हैं खुशबू बड़ी अच्छी होती है, लेकिन इसमें फूल खिलेगा तो मुझे पता चलेगा कि इसकी खुशबू अच्छी होती है या नहीं. लेट्स टेक अ लुक एट अदर टू. दे आर नॉट प्रिटी, टू बी ऑनेस्ट, दे आर नॉट वेरी प्रिटी. देन इन दिस सेगमेंट, जिसमें से पहले मैंने 2 गमले उठा लिए थे. अच्छा, ये एक है मेरे पास, चंबेली का ही है. ये मैंने पहले मंगवाया था तो ये ख़राब हो गया था. ख़राब, ये देखें ख़राब है, ठीक है. इसमें मैंने ऊपर से कुछ डेड तोड़ भी दिए थे, बट देन इट सडनली शोड this न्यू ग्रोथ एंड आई केप्ट इट. तो अच्छा, उसके बाद मेरे पास ये न्याज़बू है. ये तीसरा न्याज़बू है जो कि मुझे बहुत महंगा पड़ा था. लाइक इट वाज जस्ट लिटरली दीज स्टेम्स एंड इट कॉस्टेड मी
300 और 250, आई डोंट रिमेम्बर। एंड जो मैंने पहले दिखाए थे न्याज़बो के, दे जस्ट कॉस्टेड मी 100 रुपीज। कैन यू बिलीव इट? दोज बिग वंस कॉस्टेड मी 100 एंड दिस लिटिल वन कॉस्टेड मी 250। ओ माई गॉड, मैं तो लुटी गई। ओ माई गॉड। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई हैव दिस जामुन का प्लांट जो कि मैंने खुद ग्रो किया है इन अ कूलर। आई हैव रिसाइकल्ड अ कूलर सो दैट इट डजंट गो इन डंप्स। एट द एंड जाना तो उसने डंप्स में है, तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्लास्टिक यूज़ ही ना करें, प्लास्टिक अपने घरों में आने ही ना दें, लेकर ही ना आए। लेकिन ये एक हमारे गले की हड्डी बन चुकी है जिसको हम ना निकल सकते हैं ना उगल सकते हैं। इट इज़ डूइंग वेल। अभी तो मैंने इसको शेड में रखा हुआ है, लेकिन एक वक्त आएगा जब इसको सूरज की रोशनी मिलेगी। सो इसी के साथ हमारा जर्नी टूवर्ड्स प्लांट सेक्शन लाइक इंट्रोडक्शन पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचता है। And I have total of 67 pots and everybody please play that I increase their number और मैं इनकी थोड़ी साफ सुथराई भी रखा करूँ। I know they are very very गंदे बंदे so let's just pray they become good one day